Welcome to Study Unscripted. We are going to start our new unit, that is Unit 5, Human Physiology, and we will do the first chapter of the human physiology in this lecture, and that is breathing and exchange of gases. So before going to that top chapter, first we shall read the introductory part for this unit. Okay, so the reductionist approach to study of life forms resulted in increasing the use of physiochemical concept and technique. तो जो हमारा रिडक्शनिस्ट अप्रोच था उससे इंक्रीज हो गया हमारा किस चीज का यूज, फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट के यूज हमारे इंक्रीज हो गए. मेजॉरिटी ऑफ दिस स्टडी employed either serving tissue model or straight away cell free systems. Okay, cell free systems को underline कर लो. An explosion of knowledge resultant in the molecular biology. Now molecular physiology become almost synonymous with biochemistry and biophysics. So this is an important statement. Molecular physiology synonymous है with the biochemistry and biophysics. However, it is now being increasingly realized that neither a purely organic approach nor a purely reductionist molecular approach would reveal the truth of about the biological process or living phenomena. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट नहीं हो सकते इस लाइन से. Now systems biology makes us believe that all living components of a system under the study regulatory network of molecules, supramolecular assemblies, cell, tissue organisms, and indeed population and communities each create emergent property. In this chapter, under this unit, major human physiological process like exchange of gas, blood circulation, locomotion, and cellular and molecular terms. And the last two chapters point to the coordination and regulation of body event in the organismic level. तो ये जो हम टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर्स में देखने वाले हैं विल सी अकॉर्डिंग टू द लेक्चर. So now we are going to do the breathing and exchange of gases, that is chapter 14, and this is the new edition book. Okay, let me write here new edition. So if you are following the old edition, so please change because you have seen the recent example in NEET 2024 there was the reduction of -5 marks in the question of physics. Okay, so we are going to see the Alfonso Cotti. He was the Italian anatomist. So keep in mind he was an Italian anatomist born in 1822. Cotti began his scientific career studying the cardiovascular system of reptiles. So this is important. Alfonso Cotti ने अपना career begin किया while studying the cardiovascular system of reptiles. Later he turned his attention to the mammalian auditory system, जो कि अब हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है. जब हम ईयर को पढ़ते थे तब हम अल्फांसो कॉटी के बारे में ज़्यादा वहाँ पे देखते थे. ठीक है, तो in 1851 he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the cochlea containing hair cells that convert sound vibrations into the nerve impulse and the organ, उसको organ of Corti बोला गया. This was that statement जो हम ईयर वाले टॉपिक में पढ़ते थे जो अब सिलेबस रिमूव हो चुका है नीट के एंड ऑल्सो फ्रॉम द बुक. तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बिकॉज इट इज़ गिवन हेयर ओनली. और अगर तुम इस टॉपिक को नहीं देखोगे, इस पेज को नहीं देखोगे, देन माइट यू मिस दिस लाइन बिकॉज ये कहीं अब चैप्टर में तुम्हें मिलने वाला नहीं है. ओके, तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर लोकेट किया ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन इन द कॉक्लिया containing the hair cells that converts the sound vibration into the nerve impulse and उसको हम लोग बोले organ of Corti. Okay, and he died in 1888. Now we are going to start our chapter, that is breathing and exchange of gases. First of all we will do the introductory part, then we'll do the respiratory organs, mechanism of breathing, exchange of gases, transport of gases, regulation of respiration, and at last we'll do the disorder of respiratory system. And from this disorder of suppose करो इस चैप्टर में जो डिसऑर्डर दिए हैं along with the total disorders of the human physiology, यहाँ से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं इन द नीट एग्जामिनेशन. ओके, तो हम अभी इस चैप्टर में इसको सबको देखेंगे. So let's start from the introductory part. As you have read earlier,
Oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simpler molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. ये सब हम देखेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में। तो ऑक्सीजन हमें ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को रिक्वायर्ड होते हैं और ब्रेक डाउन के बाद वो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे CO2 को देखा है। CO2 विच इज हार्मफुल is also released during the above catabolic reaction. Catabolic means जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन. इट इज देयरफॉर एविडेंट that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from the atmosphere with the CO2 produced by the cells is called breathing. Commonly हम इसको बोलते हैं respiration. Place your hand on your chest, you can feel the. now यहाँ पे अब कुछ चीज़ से क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो सकते, तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बस उस चीज़ को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बस एक ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज ब्रीदिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर से हम विड्रॉ करते हैं और हम कहाँ लेते हैं, अपने सेल्स को देने के लिए हम इसको इनटेक करते हैं, एंड हमारा जो सेल प्रोड्यूस करता है CO2, इसको हम एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि हम इसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। और अब हम इसको सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी डिटेल में देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन हमारे आर्टरीज की मदद से ट्रेवल करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वेन्स कलेक्ट द CO2 फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अभी हम ब्रीदिंग में इस चीज़ को देखेंगे। तो ब्रीदिंग में हमने बस एक ही चीज़ देखा, दैट वाज द डेफिनेशन फॉर ब्रीदिंग, दैट वाज इंपॉर्टेंट इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक 14.1, दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ओके, so let's see. Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitat. ठीक है, तो उनका हैबिटेट क्या है उस चीज पे डिपेंड करता है कि उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल हमने टैडपॉल में देखा, एंड फ्रॉग का जो टैडपॉल था उसके ब्रीदिंग के कुछ और ही सिस्टम थे, और जब वो बड़ा हो रहा था तो ब्रीथ कुछ और से कर रहा था, ठीक है। तो हमने ये सब देखा था फ्रॉग वाले में भी। तो उसके हैबिटेट पे डिपेंड करेंगे, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या क्या डिपेंड करेगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड ऑन habitat and level of organization, and this is the first question which can be asked from this line. Lower invertebrates, अब यहाँ पे हम देखेंगे invertebrates like sponge, coelenterata, flatworm, exchange of oxygen with CO2 by simple diffusion over the entire body surface. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइप देखा, that is simple diffusion. Okay, now earthworm जो है Annelida phylum से, use their moist cuticle and insect have the network of tubes, that is tracheal tube. तो moist cuticle, tracheal tube to transport the atmospheric air within the body. A special vascularized structure called gills, अब यहाँ पे हम gills को भी लिख लेते हैं, gills। now इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं because this is important, जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, are used for the most of the aquatic arthropods and mollusca, whereas the vascularized bags, that is called lungs, or mammals also use the lungs, we are also using the lungs, जिसको हम लोग बोलते हैं pulmonary respiration, are used by the terrestrial forms for the exchange of gases. Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds, mammals respire through lungs. Amphibian like frogs can use to respire through their moist skin, जिसको हम लोग बोलते हैं cutaneous respiration, ठीक है। The last is the cutaneous respiration. तो ये डिफरेंट टाइप्स हमें यहाँ पे फाउंड आउट हुए। जो हमारा पहला था सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे वो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे,
They were the lower invertebrates like sponge, coelenterata, flatworms, etc. Then the exchange of oxygen and CO2 by simple diffusion was taking place, और ये इनके entire body surface use हो रहे थे in this. तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, entire body surface, यहाँ से simple diffusion होता है. Now the moist cuticle तुम्हारा present होता है in earthworms. Okay, moist cuticle in earthworms, tracheal tubes in insects, gills in the यहाँ पे तुमने देखा था aquatic arthropoda and mollusca, gills in the aquatic arthropoda and mollusca. Now keep in mind ये ना aquatic arthropoda है, ठीक है. aquatic यानी कि जो arthropoda पानी के अंदर में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए गिल्स यूजफुल है. एंड फॉर mollusca आल्सो. एंड लंग्स, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. एंड द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो कि होते हैं फ्रॉक्स में, ओके, जहाँ पे वो स्किन से इंस्पायर होता है. तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और हमने इसको डिफरेंट पॉइंट्स में हाईलाइट कर लिया. इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर देन यू मस्ट राइट दिस हेडलाइंस, ओके, इन योर बुक, कहीं पे साइड में लिख लो, जिससे कि व्हेन यू विल रीडिंग द क्वेश्चन तुम खुद से क्वेश्चन अराइज कर सकोगे और उसके आंसर दे सकोगे, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द topic 14.1.1, that is the human respiratory system. Okay, we have a pair of external nostril. Let's write here nostril, और ये होते हैं paired. अरे तुम्हारे नाक के जो होल है ना उसको बोल रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लो. above upper lips, it leads to the nasal chamber. Now this nasal chamber, मैं बता रहा हूँ मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, टू द नजल पैसेज, ठीक है. नजल चैम्बर कैसे ले जा रहा है, टू द nasal passage, then the nasal chamber. The nasal chamber opens into the pharynx, ठीक है, a portion which is common passage for food and air. कौन, pharynx जो है, this is common for food and air. और ये जो pharynx होता है, this opens into the larynx, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, larynx region, into the trachea. Larynx is also cartilaginous box which helps in the sound production and is called the sound box. Larynx and then trachea. During the swelling of glottis can be covered by the thin, okay, इसको मैं highlight कर लेता हूँ, thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. यानी कि खाना वॉइस बॉक्स में नहीं जाना चाहिए. ट्रैकिया, अब देखो यहाँ पे देखो, trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra. ठीक है, ये फिफ्थ thoracic vertebra से डिवाइड कर जाता है into the left and the right pulmonary primary bronchi. ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकी. अब हम इसको डायग्राम में समझेंगे, ठीक है. ये रहा डायग्राम, दिस इज द ट्रैकिया. ये फिफ्थ पोजीशन से डिवाइड कर जाता है, इसमें डिवाइड कर जाता है, यहाँ पे देखो, प्राइमरी ट्रैकिया में, ठीक है. Now each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary and the tertiary bronchi and bronchioles, ending up in a very thin terminal that is called bronchioles, thin terminal called bronchioles. The trachea, primary and the secondary and the tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous rings. This is the important statement here. और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है, दीज आर इनकम्प्लीट. ये रिंग इसलिए होते हैं ताकि तुम प्रेशर में वो कंप्रेस ना हो सके, और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन कोलैप्स ना हो सके, ठीक है. तो दीज आर द रिंग्स, सपोज कर लो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स,
जो कि यूजफुल होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए किनको किनको, ट्रैकिया को, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी को, एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स को। कीप इन माइंड यहाँ पे इनिशियल ब्रोंकियोल्स यूज कर रहा है, ठीक है। दिस इज द ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल का जो इनिशियल पार्ट है, सपोज करो दिस इज द इनिशियल ब्रोंकियोल, तो इसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। नाउ ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag structure called alveoli. The branching network of bronchi, bronchioles, and alveoli comprise the lungs. We have two lungs which are covered by the double layered pleura with the pleural fluid between them. It reduces the friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic cavity and the जो तुम्हारा अंदर वाला pleural membrane होगा वो कांटेक्ट में होगा किसके? विद द सरफेस ऑफ द लंग्स। तो पहले इसको अब हम डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे। तो सपोज करो जो हमने एयर ब्रीथ करा वो हमारे नोस्ट्रिल से कहाँ जाता है? नोजल पैसेज में, देन इट गो टू द नजल चैम्बर, देन इट गो टू द फेरिंग्स, देन इट गोज टू द लैरिंग्स, एंड एट लास्ट इट गोज टू द ट्रैकिया। एंड ट्रैकिया से कहाँ पे जाएगा? ट्रैकिया से प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा, एंड एट लास्ट ये एल्वियोली तक जाएगा, ठीक है। जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोली। बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा ना, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली। तो दिस इज द क्या बोल सकते हो, ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है कि ये कैसे कैसे एयर अंदर जा रहा है। तो हमने ये देख लिया। फिर हमने इस टॉपिक में ये भी देख लिया जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स थे वो किनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमने ये भी देख लिया। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा दैट कि ये जो तुम्हारे लंग्स होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होते हैं। इनका जो आउटर पोर्शन होता है ये कांटेक्ट में होता है थोरेसिस कैविटी के, ठीक है। एंड जो अंदर वाला होता है वो कांटेक्ट में किसके होता है? वो कांटेक्ट में होता है लंग्स के, ठीक है। लंग सरफेस के कांटेक्ट में होता है। एंड दिस इज द हार्ट। अब हम हार्ट की पोजीशन को भी पढ़ेंगे कि स्लाइटली टिल्टेड होता है, ठीक है। तो उसके पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन है इसके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड, और ये जो तुम्हारा जो ये लेयर होता है इसको हम बोलते हैं, लेट मी हाईलाइट दिस, इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, ठीक है। प्लूरा, डबल लेयर्ड प्लूरा विद द प्लूरल फ्लूइड होता है उसमें बिटवीन देम, जो कि काम किसमें करता है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द लंग सरफेस। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब ये वाटर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है ना, प्लूरल फ्लूइड, जब वाटर यहाँ पे जब कम हो जाता है तो दोनों हमारे केसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और इन सर्टेन केसेस यहाँ से डॉक्टर्स नॉन सर्जिकल मेथड से यहाँ से वाटर रिमूव भी करते हैं। ये काफ़ी क्रिटिकल प्रोसीजर होता है, ओके। तो हमें उतना डीप नहीं जाना है इसमें, बस इतना याद रख लो। इसमें होता है प्लूरल फ्लूइड जिसका काम है रिडक्शन करना फ्रिक्शन में बिटवीन द लंग सरफेस के। जो इसका आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर वाला मेम्ब्रेन है ये थोरेसिस चैम्बर या थोरेसिस कैविटी के कांटेक्ट में है। जो अंदर वाला है वो लंग्स के डायरेक्ट सरफेस कांटेक्ट में है। नाउ दिस इज द ब्रोंकस, कीप इन माइंड ये जो यहाँ वाला पोर्शन है दैट इज ब्रोंकस। दिस इज कट एंड ऑफ रिब्स दैट इज लंग्स। हमारे पास होते हैं कितने? 2 लंग्स, कीप इन माइंड हमारे पास होते हैं 2 लंग्स। ये रहा एक, ये रहा 2। ये रहा हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन, ये रहा हमारा एल्वियोली। एल्वियोली इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द प्लूरल फ्लूइड जो हमने देखा था जो बीच में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द 2 प्लूरा मेम्ब्रेन्स, एंड दिस इज द ब्रोंकियोल, ठीक है। तो हमने ये डायग्राम देख लिया, एंड दिस इज द डायफ्राम। डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है इन ब्रीदिंग। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम नोट डाउन करेंगे, ओके। Now let's read this. The part starting from the external nostril to the terminal bronchiole, ये कंस्टिट्यूट करते हैं किसको? कंडक्टिंग पार्ट को, ओके। कंडक्टिंग पार्ट किसे बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। अब एक्सटर्नल के बाद होते हैं कंडक्टिंग पार्ट होते हैं, और वेयर इज द एल्वियोली एंड देयर डक्ट्स आर द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो हमने ये देख लिया कंडक्टिंग पार्ट। नाउ व्हाट इज द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट? लेट मी हाईलाइट दिस।
एल्वियोली और उसके जो डक्ट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स प्लेस एट एल्वियोली ओनली। हमने किसको देखा? हमने देखा कंडक्टिंग पार्ट, हमने देखा रेस्पिरेटरी पार्ट। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। कंडक्टिंग पार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो तुम्हारे अपर लिप में है, जो पेयर्ड होते हैं टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल कौन है? एल्वियोली से जस्ट पहले वाला, ठीक है। एंड द रेस्पिरेटरी पार्ट जो है हमारा वो है एल्वियोली और उसके डक्ट। नाउ द कंडक्टिंग पार्ट, अब देखो कंडक्टिंग पार्ट का यूज क्या होता है, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को टू द एल्वियोली, और उस बीच में वो क्या काम करता है? उस बीच में ये इसको करता है, क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल से, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, और उसको जो हम एयर जो हम ब्रीथ कर रहे थे अंदर, उसको एक बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मलिटी में लाके उसको एक इक्विलिब्रियम में लाता है, ठीक है। नाउ एक्सचेंज पार्ट का जो रोल होता है वो देख लो। एक्सचेंज पार्ट जो है हमारा वो साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन है, किसके बीच में? बिटवीन द ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। बिकॉज जो तुम्हारे एल्वियोली होते हैं उस पे अटैच होते हैं न्यूमरस इन आर्टरीज कह लो, या तुम कह लो कैपिलरीज, सॉरी कैपिलरीज, जिसमें होते हैं ब्लड, ठीक है। एल्वियोली में होते हैं कैपिलरीज अटैच सेवरल, सपोज करो ये एल्वियोली, इसमें सेवरल कैपिलरीज अटैच है जिसमें ब्लड मौजूद है, और वो ब्लड कैरी कर रहे होते हैं CO2, जो एक्सचेंज कर लेते हैं खुद को ऑक्सीजन की मदद से। अभी एक्सचेंज करने में भी काफ़ी हद तक कुछ प्रेशर का रोल है, जिसको हम अपकमिंग टॉपिक में भी देखेंगे। अभी तक बस इतना ही जान लो, ठीक है। अब देखो हमारे लंग्स के पोजीशन के बारे में बता रखा है। सो दिस इज लंग्स। ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ये सिचुएटेड है थोरेसिस चैम्बर में, विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। ये एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिस चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली। अब ये जो तुम्हारा थोरेसिस चैम्बर है, लेट मी हाईलाइट दिस, थोरेसिस चैम्बर, ठीक है, उसके जो डोर्सल पार्ट है, डोर्सल पार्ट में है वर्टिब्रल कॉलम, उसका जो वेंट्रल पार्ट है उसमें है स्टर्नम, और उसका जो लेटरल है उसके पास है रिब्स, और उसके जो लोअर साइड में है उनके पास है डोम शेप डायफ्राम, ठीक है। तो सपोज करो ये रहा वो फिगर। तो ये जो तुम्हारा डायफ्राम है ये डाउन साइड तो मौजूद है, जो तुम्हारे लेटरल साइड है वो रहे रिब्स, ठीक है। फिर इस लंग्स के ऊपर होते हैं स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम लोकेट होता है तो वेंट्रल साइड में। और जो इसके बैक साइड होंगे, मतलब इसके जो बैक पे होंगे वो वर्टिब्रल कॉलम होंगे, तो दैट इज डोर्सल टू द lungs. Okay, so keep in mind the anatomically setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing, ठीक है। और we cannot directly alter the pulmonary volume, so highlight this, we cannot directly alter the pulmonary volume. हमें क्या यहाँ पे जानने को मिला? हमें यहाँ पे जानने को बस एक ही चीज़ मिली, जो तुम्हारा जो एनाटॉमिकली सेटअप है जो लंग्स का वो थोरेक्स के अंदर है, वो एक एयर टाइट चैम्बर है। तो लेकिन कोई भी अगर वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे उस थोरेसिस कैविटी में, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे लंग्स के साथ, यानी हमारे पल्मोनरी कैविटी के साथ। उसको मतलब दोनों कनेक्टेड है। अगर कुछ चेंजेस अगर तुमने कर भी दिया थोरेसिस चैम्बर में, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर था, उसकी वजह से लंग्स में भी चेंजेस अकर हो जाएंगे। और ये जो चेंजेस अकर होना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्रीदिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक हियर विच इज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हम देखते हैं कौन कौन से वो स्टेप हैं। पहला, ब्रीदिंग और पल्मिनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होते हैं। कौन? कंडक्टिंग पार्ट, वेयर इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, एल्वियोली और उसके डक्ट को बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं बिकॉज जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग का, वो बोल रहा है कि हमें पहले एयर को विड्रॉ करना होता है इनसाइड, तो कंडक्टिंग पार्ट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, एंड वी हैव टू रिलीज द CO2 रिच एल्वियोलर एयर आउटसाइड,
तो उसमें रेस्पिरेटरी पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. नाउ पॉइंट 2, diffusion of gases oxygen and CO2 across the alveolar membrane. Now point number 3, that is transport of gases by the blood. Now point 4, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and the tissue. And at last, utilization of oxygen by the cells of catabolic reaction and resultant release of CO2. Cellular respiration is dealt in chapter 12. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रेस्पिरेशन के की पॉइंट्स हैं जो हम वन बाय वन करके देखेंगे. ओके, तो टॉपिक 14.2, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस. पहला है इंस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज द एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मीन्स नथिंग बट द इनटेक ऑफ एयर ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन. ठीक है, और जो एक्सपिरेशन है वो रिलीज्ड आउट होता है, एल्व्यूलर एयर रिलीज्ड आउट होता है. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयर इन टू और आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट. नाउ कीप इन माइंड, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है प्रेशर ग्रेडियंट का. ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है जो क्रिएट करता है नीड कि हमें एयर विड्रॉ करना है या हमें एयर रिलीज आउट करना है. ठीक है, इंस्पिरेशन कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. यहाँ पे इंट्रा टर्म है यानी कि विद इन. ठीक है, किसी एक के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे लंग्स के बारे में बात हो रहा है, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर within the lungs is less than the atmospheric pressure, that is there is negative pressure in the lungs with the respect of the atmospheric pressure. Similarly expiration तब होगा जब intrapulmonary pressure higher होगा than the atmospheric pressure. The diaphragm and the specialized set of muscle, that is external and the internal intercostal between the ribs, helps in the generation of such gradients. Okay, तो अब तुमने ये तो देख लिया कि अगर इंस्पिरेशन करना है तो तुम्हारे पास निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए इन द लंग्स, और तुम्हें अगर एक्सपायर करना है तो तुम्हारा जो पल्मोनरी ग्रेडियंट होना चाहिए इन द लंग्स वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो ये जो ग्रेडियंट्स होते हैं उनको क्रिएट करने में जो मेजर रोल होता है वो इनका होता है. ठीक है, तो वो होता है मेजर रोल्स प्लेड बाय द डायफ्राम and the specialized set of muscles, that is external, and the internal intercostal muscles that is present between the ribs. ये help करता है generation में such gradients. So this is one of the most important point in this topic. Okay, now अब देखो हम again inspiration के बारे में देखेंगे. Inspiration is initiated by the concentration of contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the AP axis, antero-posterior axis, and the contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and the sternum, causing increase in the volume of the thoracic chamber in the DV axis, dorsoventral axis. ठीक है, तो अभी हमने किसके बारे में देखा? अभी हमने देखा इंस्पिरेशन के बारे में. सो लेट मी राइट हियर. अब हम लोग यहाँ पे इंस्पिरेशन के सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है. तो पहले हम लिखते हैं अबाउट द डायफ्राम. देखो, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज एंटीरो posterior, and the volume of thoracic increases. Volume of thoracic chamber increase. Okay, ये किसके लिए बातें कर रही है? तो जब इंस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, बिकॉज इंस्पिरेशन में तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंड द नेक्स्ट जो हमारा है वो हमने देखा अबाउट द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द रिब्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. किसमें? इंस्पिरेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. और ये क्या करते हैं? दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द थोरेसिक चैम्बर. और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जो ये तुम्हारे हैं, दिस इज प्रेजेंट इन डोर्सो वेंट्रल
एक्सिस। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कीप इन माइंड, जो हमारा डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंस्पिरेशन में, और वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होता है। लेटर ऑन जो तुम्हारा इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेम चीज़ ये भी कर रहा है इंटरनल थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज करने में, एंड दिस इज प्रेजेंट इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इस चीज़ को याद कर लो। ओके, अब बाकी और कुछ तो नहीं था जो हमने अभी पढ़ा। नाउ अब जब अगर ये इसको इंस्पायर करना है, ठीक है, जब इसको सांस अंदर लेनी है तो ये उसका कंडीशन है। सोचो कि ये एयर जो है वो एंटरिंग इन द लंग्स, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पल्मोनरी ग्रेडियंट होगा, ठीक है, ये निगेटिव होगा, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू द पल्मोनरी ग्रेडियंट। ओके, अब यहाँ पे जो तुम्हारा रिब्स और स्टर्नम है वो रेज हो रहे हैं बाहर की तरफ। ये तुम्हारा रिब केज रहा, यहाँ पे डायफ्राम देखो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इस एरो के साइंस को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में ये नीचे की तरफ एरो इसमें दे रखा। ओके, और ये तुम्हारा जब तुम्हारा एक्सपिरेशन होता है उसका है, यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव प्रेशर होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। जो तुम्हारा डायफ्राम है वो रिलैक्स हो रहा है और आर्च्ड अपवर्ड्स, ठीक है, इसमें जो एरोज हैं वो अपवर्ड्स की तरफ हैं, सो दे आर इंडिकेटिंग द एक्सपिरेशन, एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। और जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर है ये डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज एयर तो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन, अब ये क्या बोलना चाह रहा है। एंड दिस इज, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स अभी जो आने वाले हैं दीज आर इंपॉर्टेंट, और उसको हम इकट्ठा एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिस वॉल्यूम कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। देखो जब तुम्हारा ये हमने देखा जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो दीज वर कॉजिंग द चेंज इन द थोरेसिस वॉल्यूम, और वो इंक्रीज हो रहा था। तो इस थोरेसिस वॉल्यूम के इंक्रीज की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम ये जो तुम्हारा है वो भी इंक्रीज हुआ। तो द इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, ठीक है, which forces the air from outside to move into the lungs, and that is the respiration। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, कह सकते हो असर्शन रीजन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल इंक्रीज जो है तुम्हारा थोरेसिस वॉल्यूम है, जो तुम्हारा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन से हुआ, ये सिमिलरली ये कॉज क्या कर रहा है, सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। ओके, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को, कहाँ पे, जो तुम्हारे लंग्स है उसमें इसको डिक्रीज कर देता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तब तुम्हारा वहाँ पे निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, जिस निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट से एयर फ्रॉम द आउटसाइड ये अंदर की तरफ जाता है इनटू द लंग्स, और फाइनली हमारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड, हमारा जो एयर है वो अंदर चला गया, और इस प्रोसेस को ही हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्या बोल रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। नाउ रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम यानी कि एक्सपिरेशन को डोनेट करना चाहता है, एंड द इंटरकोस्टल मसल्स return the diaphragm and the sternum to their normal position, reduce the thoracic volume, thereby the pulmonary volume खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, और इनकी वजह से जो तुम्हारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर फ्रॉम इनसाइड वो आउटसाइड की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक एयर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो निगेटिव है एज कंपेयर टू द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और उसकी वजह से एक्सपिरेशन होता है। नाउ कीप इन माइंड, एक सिंपल टर्म है जो तुम्हें याद रखना है, जब हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं इंट्रा इंट्रा कीप इन माइंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बट हम जब इंटर कोस्टल को लिखते हैं तो वी आर राइटिंग लाइक दिस इंटर कोस्टल मसल्स। यहाँ पे इंट्रा नहीं है, कीप इन माइंड यहाँ पे इंटर है, यानी कि बिटवीन द टू, और इंट्रा यानी कि विद इन द वन। तो ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं जो मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट हमारा क्या है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जो अभी हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में डिफरेंट टर्म्स देखेंगे उसमें पता चलेगा। तो ये जो कैपेसिटी जो इंक्रीज करने का होता है ना, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये डिपेंड करते हैं किनके पास,
ये डिपेंड करते हैं एडिशनल मसल्स जो प्रेजेंट है हमारे एब्डोमेन में। तुम फील कर सकते हो व्हेन यू आर फोर्सफुली इंस्पायरिंग, जबरदस्ती सांस ले रहे हो ज़्यादा डीप, तो तुम्हारे स्टमक के जो मसल्स हैं उनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। फील इट। ओके। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 से 16 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है, 12 to 16 टाइम्स इन अ मिनट, एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द, यहाँ पे जो मशीन यूज होता है जो एस्टिमेट करता है, दैट इज द स्पायरोमीटर, कीप इन माइंड, विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मिनरी फंक्शंस। ओके, हमने इन चीज़ों को देख लिया। अब मैं तुम्हें इन जनरल सिर्फ इंस्पिरेशन के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, जस्ट लिसन एंड फील इट, ठीक है, बस इसको सुनो। तुम्हारी इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था? जो तुम्हारा इंटर कोस्टल मसल थे, ठीक है, वो तुम्हारे रिलैक्स थे। इसमें इंस्पिरेशन में बातें कर रहा हूँ। जो तुम्हारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से डोर्सो वेंट्रल जो एक्सिस था उसकी थोरेसिक चैम्बर की जो तुम्हारी स्पेस थी, वॉल्यूम थी, वो इंक्रीज हो रही थी। तुम्हारे रिबकेज जो थे वो आउटवर्ड की तरफ मूव हो रहे थे और अपवर्ड जा रहे थे। तुम्हारा जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी था वो इंक्रीज हो रहा था इन सभी की वजह से। जो तुम्हारा प्रेशर था इन एल्वियोली वो डिक्रीज था, ठीक है, और इसकी वजह से हमें हवा बाहर से अंदर की तरफ लेनी पड़ रही थी। तो दिस वाज ओवरऑल समराइज्ड फॉर्म इसके लिए फॉर इंस्पिरेशन। एंड तुम्हें ये चीज़ तो पता होगी, हमने देखा था कंडक्टिंग पार्ट कौन से होते थे एंड रेस्पिरेटरी पार्ट कौन से होते थे। कंडक्टिंग पार्ट वाज फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो इन चीज़ों को कुछ कुछ याद रखना, बिकॉज अगर ये मिस आउट हुए तो देन इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम और ये क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 14.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला टर्म आ रहा है दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कीप इन माइंड, अब ये टाइडल वॉल्यूम है क्या? बस पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम बस एक 500 ml है, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट थिंग्स देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पायरेशन। जब हम नॉर्मली, जैसे तुम अभी लेक्चर कर रहे हो, तो द नॉर्मल एयर जो तुम इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हो, सॉरी इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हो, वो तुम्हारा है टाइडल वॉल्यूम, और उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, एंड हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। नाउ कीप इन माइंड ये मिलीलीटर यूज हो रहा है और यहाँ पे ml यूज हो रहा है 500 ml। तब तुम कहोगे कि क्या हमें ये डाटा रट्टा मारना है 6000 to 8000? मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि 12 से 16 बार एक नॉर्मल इंसान ब्रीथ करता है, ठीक है। तो अगर ये 12 है, अगर तुम इसको टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बिकम 6000 to 8000 ml, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें हैं, सेम बात को इसने थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज IRV। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये जो तुम्हारे IRV है ना, यहाँ जो V है वो वॉल्यूम के लिए स्टैंड हो रहा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बिकॉज ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है V को, ठीक है। V को वॉल्यूम से कंफ्यूज कर देगा। और अभी तुम नीचे देखोगे, जब नीचे जाओगे तो हमें और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलने वाले हैं। तो ये तो पहले तुम्हारे बेसिक टर्म्स हैं जिसकी वजह से बाकी टर्म्स डिपेंड करेंगे उनके ऊपर। तो हमने IRV देख लिया, एंड ये हमारा ERV दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो पहली बात है, तुम डाटा याद कर लो कि इस IRV में क्वांटिटी कितनी होती है, ठीक है, दैट इज 2500 ml to 3000 ml, और ERV में होता है 1000 to 1100 ml। अब हम देखते हैं व्हाट इज IRV। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by the forcible inspiration, जिसमें हेल्प करने में हमारी जो एडिशनल मसल्स होती है एब्डोमेन की वो हेल्प करती हैं इन कामों में। तो तुमने क्या देखा, जो तुम्हारे IRV है उसका जो वॉल्यूम होगा, सपोज करो कि उसका जो क्वांटिटी है दैट इज 2500 to 3000 ml, और ये फोर्सिबल इंस्पिरेशन है, जैसे तुम जब नॉर्मली सांस ले रहे थे अंदर की तरफ दैट वाज TB 500 ml। बट जब तुमने टीवी के अलावा एक फोर्स लगाया कि मुझे और अंदर हवा लेना है, दैट इज IRV, एंड उसका क्वांटिटी हमने देख लिया। और वैसे ही जब तुम सांस छोड़ रहे थे तो तुम एक TB छोड़ रहे थे, यानी कि 500 ml जब तुम नॉर्मली कर रहे थे, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स
बाहर तुम हवा छोड़ने के लिए नाक से मतलब तुम फोर्स लगा रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड ERV, और उसका जो क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू 1000 to 1100 ml। तो कीप इन माइंड। नाउ अब हम देखेंगे RV क्या है। RV is important, quite important. That is the residual volume. Okay. इसका जो पहले तुम क्वांटिटी नोट डाउन करोगे दैट इज 1100 ml to 1200 ml. सो कीप इन माइंड जो तुम्हारा RV है इट इज ग्रेटर देन ERV, बिकॉज ERV में कितना था, ERV में था तुम्हारा 1000 to 1100 एंड तुम्हारे RV में कितने 1100 to 1200. These are small things from which questions can be created और तुम वहाँ पे कंफ्यूज होते फिरोगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा आरपी था उसके हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ये वो वॉल्यूम है जो तुम्हारे लंग्स में तो हमेशा ही रहेंगे, तुम जो भी जोर लगा लो, तुम जोर से सांस ले लो, जोर से सांस छोड़ दो, डजेंट मैटर, आरबी वहाँ पे मौजूद रहेगा, बिकॉज ये तुम्हारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। बाई एडिंग अप few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in the clinical diagnosis. हमने किस किस चीज़ को देखा, हमने टीवी को देखा, हमने IRV देखा, हमने ERV देखा, हमने RV देखा। अब इन चारों की मदद से हम डिफरेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट कैपेसिटीज को डिराइव करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, एंड दिस इज नथिंग बट द टीवी प्लस IRV। जैसे कि नेम इसका साउंड कर रहा है, इंस्पायर करने की कैपेसिटी कितनी है, तो तुम तो पहले नॉर्मली इंस्पायर करोगे तो टीवी ले लोगे, और जब तुम फोर्सफुली इंस्पायर करोगे तो तुम IRV ले लोगे। नाउ द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो ये भी नेम से साउंड पता चल रहा है, नॉर्मली एक्सपायर करोगे तो टीवी छोड़ोगे, और जब फोर्सफुली एक्सपायर करोगे तो ERV को रिलीज आउट करो। तो इसका जो वॉल्यूम होगा टोटल दैट विल बी इक्वल टू 500 प्लस 2500 टू 3000, जो हमारा एवरेज डाटा हमने देखा था। तो दिस विल इक्वल टू अराउंड 3000 टू 3500 ml। ओके, ये IC की वैल्यू होगी, और जो तुम्हारी ERV की वैल्यू होगी दिस विल बी अराउंड 1500 टू 1600 ml। नाउ अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज द FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब ये जो वैल्यू होता है ये कंटेन करता है ERV प्लस RV को। इस चीज को तुम रट्टा ही मार लो, ठीक है। तो अब हम FRC की डेफिनेशन को देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV। अब FRC क्या बोल रहा है, सपोज करो तुम सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, तो तुमने एक नॉर्मली सांस छोड़ दिया, यानी कि तुमने एक टीवी को रिलीज आउट कर दिया 500 ml। उसके रिलीज आउट करने के बाद तुम्हारी कैपेसिटी क्या है जो तुम अंदर स्टोर करके बैठे हुए हो, तो तुम्हारी कैपेसिटी जो पहले वाली है वो ERV जो तुम रिलीज आउट कर सकते हो पर तुमने किया नहीं है, तो उसका वैल्यू तो तुम्हारा अराउंड 1000 टू 1100 था, और जो तुम्हारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती हैं RV, उसका वॉल्यूम कितना था 1100 टू 1200। तो यू कैन से दैट आफ्टर एडिंग अप ये तुम्हारा लगभग 2100 से लेकर 2200 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। नाउ वी विल सी द वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। पहले तो जोर लगा के सांस छोड़ दिया, फिर जोर लगा के सांस ले लिया, तो उस टोटल को हम क्या कहते हैं, उस टोटल को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब इसमें ERV इंक्लूडेड है, टीवी इंक्लूडेड है, IRV इंक्लूडेड है, बट कुछ इंक्लूडेड नहीं है, तो वो है ऑन RV इंक्लूडेड नहीं है, रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूडेड नहीं है इस चीज़ में, बिकॉज अगर तुम रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी के। तो ये देखो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इट इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है लंग्स के अंदर एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स RV, ERV, PV एंड IRV, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है, RV का वैल्यू देख लो, ये रहा तुम्हारा 1100 प्लस ERV तुमने देख लिया, ये रहा अराउंड तुम्हारा 1000 प्लस TV हो गया तुम्हारा 500, एंड जो तुम्हारा IRV होगा ये हो गया तुम्हारा 2500 टू 3000, ठीक है। तो ये लगभग इन सभी के एडिशन के बराबर टोटल लंग कैपेसिटी हमारी आ जाएगी।
तो हमने क्या देख लिया, हमने टोटल कैपेसिटीज को देख लिया और रेसिडुअल वॉल्यूम्स को देख लिया, जो कि डिराइव हो रहे हैं किससे, tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and the RV residual volume. Okay. Topic 14.3 exchange of gases. So we know that the exchange part या जो respiratory part होते हैं, these are alveoli and their ducts. So let me highlight the important statement here. That is, alveoli are the primary site for the exchange of gases. Exchange of gases जो यहाँ पे हो रहा है, it occurs between the blood and the tissues. Okay, and यहाँ पे ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा होता है, and this exchange is taking place by the simple diffusion, mainly based on pressure gradient or the concentration gradient. यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. सपोज करो इन ऑप्शन 1 प्रेशर ग्रेडियंट रहे और ऑप्शन 2 में रहे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देन द बोथ विल बी करेक्ट. लाइक ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. तो वी कैन से दैट द सिंपल डिफ्यूजन जो कॉज करता है ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज को, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट और द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. नाउ द नेक्स्ट लाइन, दैट इज द solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in the diffusion are also important factor that can affect the rate of diffusion. Okay, so rate of diffusion किससे किससे affect हो रहा है? Rate of diffusion is getting affected by the solubility of the gas and the thickness of the membrane involved in the diffusion. Okay, now the next paragraph, pressure contributed by the individual gas in a mixture of gases is called the partial pressure and is represented by PO2 for oxygen and PCO2 for CO2. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusion are given in table 14.1 and in figure 14.3 जो next page में दे रखा है. So the data given in the table clearly indicates the concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue similarly. Now let's see the table 14.1. यहाँ पे हम देख रहे हैं about the respiratory gas oxygen एटमॉस्फेरिक एयर. यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 159 एंड CO2 का है 0.3. कीप इन माइंड ये 0.3 है. नाउ अब हम देखते हैं एल्वियोली का. यहाँ पे जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दिस इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. देन वी कैन से दैट जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजन है जो ब्लड में, इट कैन डिफ्यूज इजिली इनटू द ब्लड थ्रू द एल्वियोली. देन इट कम्स टू द ब्लड दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो तुम्हारा CO2 है इसका पार्शियल प्रेशर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजनेटेड. सिमिलरली इन ऑक्सीजनेटेड इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है किसका, ऑक्सीजन का. एंड इन टिश्यू में हमारा जो CO2 है उसका कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन. देन वी कैन ईजली से दैट यहाँ पे देखो टिश्यू में जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो लोअर है, ठीक है, as compared to the CO2. So this cause dissociation of oxygen into the tissue. यानी कि जो ऑक्सीजन है इसका जो डिसोसिएशन जो ऑक्सीमोग्लोबिन फॉर्म होकर यहाँ तक चले आ रहा था, यहाँ पे वो डिसोसिएट हो जाता है और वो टिश्यू में यूटिलाइज हो जाता है. ओके, एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन एसोसिएट होगा और वो ब्लड के साथ आगे बढ़ता जाएगा और फाइनली उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज द टिश्यू जहाँ पे उसका यूज़ होना था, वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो गया, वहाँ पे वो डिसोसिएट हो गया, वहाँ पे वो टिश्यू के अंदर चला गया. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल दिस डाटा. ओके, इस नंबर्स को याद ही कर लेना है. अब यहाँ पे देखो जो तुम्हारा डायग्राम दे रखा है ना, फिगर दे रखा है 14.3. यहाँ से हम क्लियरली समझ सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पार्शियल प्रेशर. ओके, तो हम इस डायग्राम से देखते हैं. सपोज करो कि ये हमारा इंस्पायर्ड एयर है जो हमने एटमॉस्फेरिक एयर से हवा को अंदर इंस्पायर किया. यहाँ पे आया तो पता लगा कि यहाँ पे जो एल्वियोलर एयर है उसका ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाइयर है, तो ये बॉन्ड एसोसिएट हो जाएगा ब्लड के साथ ऑक्सीजन का और ये मूव करेगा इनसाइड.
यहाँ पे तुम आए, सपोज करो कि पल्मोनरी वेन में आए जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सिस्टमेटिक आर्टरीज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तुम्हारा यहाँ पे अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर एज कंपेयर टू द CO2। तो अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो तुम्हारे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, उस बॉन्ड के साथ एसोसिएट होके वो आता जाएगा। एंड फाइनली जब वो टिश्यू तक आता है तो टिश्यू पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लोअर होता है एज कंपेयर टू द CO2। तो दिस इज द रीजन ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है और वो टिश्यू के अंदर चला जाता है। देखो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे वो यूटिलाइज होता है फॉर रेस्पिरेशन, यू कैन से दैट। देन यहाँ पे जो तुम्हारा CO2 है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो ये ब्लड के साथ एसोसिएट हो जाता है और वो मूव करता है इन द सिस्टमेटिक वेन्स विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड यू नो द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड O2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ये मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी, दिस ऑल्सो कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड एट लास्ट ये एल्वियोलर रीजन में आकर रिलीज आउट हो जाते हैं, ठीक है, और वो बाहर डिफ्यूज हो जाते हैं, एक्सपायर्ड आउट हो जाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। So this diagrammatic representation of exchange of gases at the alveolus and the body tissue with blood and transport of oxygen and CO2। अब हमने देख लिया इस चीज को। Okay, now let's read the statement. Similarly, a gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissue to blood and blood to alveoli। तो ये इसके लिए ग्रेडियंट बता रहा है, ये बता रहा है अबाउट द CO2, बिकॉज एज वी हैव सीन दैट जो तुम्हारे टिश्यू में होते हैं वहाँ पे CO2 का जो पार्शियल प्रेशर था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। एंड जो तुम्हारा ब्लड, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी आउट करता है बाहर की तरफ, एंड एट लास्ट ब्लड से एल्वियोली की तरफ भी इसका जो कंसंट्रेशन होता है ये कम होते जाता है एंड फाइनली ये क्या हो जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है, एक्सपायर्ड आउट हो जाता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है किसके, ग्रेडियंट का जो CO2 के लिए मौजूद था। एज द सॉल्युबिलिटी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा CO2 होता है वो हायर सॉल्युबल होता है 20 to 25 टाइम्स more than the oxygen. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much compared to that of oxygen। Okay, तो इस स्टेटमेंट को देखो, जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज हो सकता है थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मच हायर होता है डिफ्यूजन इसके लिए, CO2 के लिए एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नेमली thin squamous epithelium, okay, and the second is endothelium, and the last is the basement substance which is composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium cells of capillaries in between them। So let's see the figure 14.4 for more detailed view। okay, तो हमने जो ये 3 मेजर लेयर्स को देखा, अब इसको हम डायग्राम्स की वजह से समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये जो लेयर है, दिस इज द थिन स्कैमस एपिथेलियम, ठीक है, एंड ये जो पूरा है दिस इज इंडोथेलियम, एंड ये जो मिडल पोर्शन है, ये जो येलोइश दिख रहा है, दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये जो थे हमारे 3 मेजर लेयर्स थे। ओके, नाउ एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यू कैन सी दिस, यहाँ पे जो मार्क्ड है उन चीज़ों को याद कर लो। दिस इज द रेड ब्लड सेल एंड दिस पोल एज द ब्लड कैपिलरी। ओके, ये जो है वो ब्लड कैपिलरी है। नाउ कीप इन माइंड, टोटल थिकनेस जो होता है ना ब्लड कैपिलरीज का, लेस देन 1 mm होते हैं। तो ऑल फैक्टर फेवरेबल फॉर ऑक्सीजन टू एल्वियोली टू टिश्यू एंड CO2 टिश्यू थ्रू एल्वियोली। तो मतलब सारे कंडीशन को देख के ऐसा लगता है कि ये फेवर करते हैं कि ऑक्सीजन जो है एल्वियोली से लेके वो टिश्यू तक चला जाए और CO2 इसके वाइस वर्से में चला है। ठीक है, however total thickness is much less than the millimeter। okay, therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue, and we know this, and CO2 के लिए टिश्यू से एल्वियोली की तरफ होता है।
Now let's move to the next topic, that is 14.4 transport of gases. तो इसमें जो टू मेजर गैस जो हमारे ट्रांसपोर्ट हमें देखने हैं, दैट इज ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज द CO2। अब वो ट्रांसपोर्ट करने वाले कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब वो कौन हो सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट कराएंगे? RBC, तो RBC भी होंगे जो ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। और दूसरे कौन से हो सकते हैं? प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दोनों क्या रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, वी नो दिस। तो लेट मी हाईलाइट, जो ब्लड है हमारा वो एक मीडियम है एंड 97% of oxygen is transported by RBC in the blood, ठीक है, this is 97%। the remaining 3% oxygen is carried out in a dissolved state through the plasma and 3% by plasma, और ये भी किस स्टेट में? dissolved, ठीक है, dissolved state। nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC, 20 to 25% RBC से, and 70% of it's carried as bicarbonates एंड 7% एज प्लाज्मा। एंड जो हमारा CO2 है ना, वो एक और फॉर्म में आ सकता है, दैट इज बाई कार्बोनेट, और ये मेजर क्वांटिटी कंटेन करता है, दैट इज 70% ऑफ CO2। तो हमने देख लिया जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन था 97% वो RBC से एंड 3% प्लाज्मा से, तो टोटल 100% हमने यहाँ देख लिया। एंड जो हमारा CO2 है दैट इज 20 to 25% RBC से, 7% डिजोल्व स्टेट प्लाज्मा से एंड बाइकार्बोनेट से 70%। तो ऑलमोस्ट ये भी जो हमारा 100% हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ओके, so let's move to the next subtopic, that is 14.4.1 transport of oxygen. Let me highlight the first one, that is the hemoglobin, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं like this, okay, is a red colored, let me highlight this, you know this is red colored iron containing pigment present in the RBC. ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर, यानी कि वो जुड़ भी सकते हैं और वो ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पार्शियल प्रेशर के साथ देखा था, वो फाइनली एट द टिश्यू पे आके वो ब्रेकआउट हो जा रहे थे और वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जा रहे थे। तो वो जो ऑक्सीजन वो जो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। So keep in mind one hemoglobin max 4 molecules of oxygen. Keep in mind binding of oxygen with the hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen, जो हमने देख लिया था। Partial pressure of CO2, hydrogen concentration and temperature are the other factor which can interfere with the binding। तो हमने एक चीज यहाँ पे देखा, जो तुम्हारा बाइंडिंग है ऑक्सीजन का किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, वो प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी डिपेंड करता है अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, प्राइमरी डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बट कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिन पे भी वो डिपेंड कर सकता है। तो वो फैक्टर्स हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर, ऑल्सो वी कैन से दैट pH भी होता है उस पर। तो ये इंटरफेयर कर सकते हैं बाइंडिंग में। तो अभी हम उसको लास्ट में देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं। नाउ सी द कर्व, दिस इज द सिग्मोइड कर्व, इसको ये सिग्मोइड कर्व बोल रहा है, सिग्मोइड कर्व plotted against when the percentage of saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. So this is the partial pressure of oxygen and this is the percentage saturation of hemoglobin with oxygen, okay। तो यहाँ पे तुम्हें नोट डाउन करना है कि एक्स एक्सिस पे कौन है और वाई एक्सिस पे कौन है, बिकॉज अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दे माइट कंफ्यूज हो। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे कौन से हैं? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एंड एक्स एक्सिस पे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज द एक्स एक्सिस जहाँ पे है PO2 एंड दिस इज द वाई एक्सिस जहाँ पे है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एंड दिस इज द सिग्मोइड
कर्व. दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. इस सिग्मोइड कर्व को हम क्या बोलते हैं? O2 डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक. ये जो कर्व हैं वो हमें क्या में हेल्प करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं इफेक्ट्स को पढ़ने में. वो कौन कौन के इफेक्ट हैं? PCO2, H प्लस कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ होमोग्लोबिन, ये जो हमारे हैं ना वो ये जो सिग्मोइड कर्व जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा सिग्मोइड कर्व डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है, वो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन वहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है. तो कीप इन माइंड, एक चीज को अपने दिमाग में रखो. व्हेन दिस कर्व इज कमिंग टू द राइट, ठीक है, राइट की तरफ आ रहा है ना, देन यू कैन से दैट यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट होने लग रहा, और जो तुम्हारा CO2 है वो एसोसिएट होने लग रहा. ठीक है, बस जनरल पॉइंट है, सो कीप इन माइंड. एंड ये राइट साइड में कब आएंगे? राइट साइड में ये कब आएंगे? जब ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा. तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर कॉजिंग द ऑक्सीजन टू डिसोसिएट? तो पहला जो है, देखो अब इसका मैं रीजन बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये कब होगा? ये तब होगा जब एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, यानी कि ऑक्सीजन का एफिनिटी डिक्रीज हो रहा है. तो इसमें प्राइमरी कंसेप्ट, प्राइमरी किस पे डिपेंड कर रहा था? प्राइमरी वो डिपेंड कर रहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो वी कैन से दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड. नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो रहा होगा. वी कैन से दैट यहाँ पे H प्लस कंसेंट्रेशन जो था, H प्लस कंसेंट्रेशन वो इंक्रीज हो रहा होगा. अगर H प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, देन वी कैन वेरी इजली से दैट वहाँ का जो pH है वो डिक्रीज कर रहा होगा. देन टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो भी इंक्रीज कर रहा होगा. एंड वन एक्स्ट्रा पॉइंट, 2-3 ppg ये इंक्रीज कर रहा होगा. ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कीप इन माइंड. राइट, जब राइट साइड वो आ रहा है यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन गिर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिर रहा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो रहा होगा, H प्लस इंक्रीज कर रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, while pH डिक्रीज कर रहा होगा. ठीक है, नाउ लेट्स रीड दिस. इन द एल्वियोली देयर आर हाई PO2, लो PCO2. हाई PO2 वाई? बिकॉज एल्वियोली में तुम्हारा जो पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का दैट वाज 104 mmHg, तो यहाँ पे हाई PO2 था. लेसर H प्लस कंसेंट्रेशन, लेसर H प्लस कंसेंट्रेशन इसलिए बिकॉज वो लेफ्ट साइड में था. ऑक्सीजन जब डिसोसिएट होंगे, देखो हमने यहाँ पे किस चीज को देखा? हमने तब देखा जब ये राइट साइड में यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है. बट इन केस ऑफ एल्वियोली ये सारे पॉइंट्स अपोजिट होंगे. ठीक है, केस ऑफ एल्वियोली में. तो अब इसको हम देख लेते हैं. तो where there is high partial pressure of oxygen and low partial pressure of CO2, वहाँ पे होगा लेसर H प्लस कंसेंट्रेशन, यानी कि वहाँ पे pH ज़्यादा होगा, वहाँ पे लो टेम्परेचर होगा. द फैक्टर्स ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, whereas in the tissue where low PO2, जिस कंडीशंस को हमने डिस्कस करा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई PCO2, हाई H प्लस, high temperature exist, these conditions are favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicates that the oxygen get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood delivers around 5 ml of oxygen to the tissue under the physiological condition. हमने तो ये चीज देखा था, जो हमारे एक हीमोग्लोबिन होते हैं वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं. Now 100 ml of oxygenated blood, ये 5 ml of ऑक्सीजन किसको देता है? टिश्यू को, ऑन डिसोसिएशन. तो दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये दोनों पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन मैंने इनको साइड में लिखा है, बिकॉज क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं इन दोनों पॉइंट से. ओके, एंड नाउ ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे, ये किसके लिए था? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन
hemoglobin. Now if you want to find out the value for the association of oxy हीमोग्लोबिन, देन वहाँ पे क्या कंडीशन होंगे? वहाँ पे पहला कंडीशन जो होगा PCO2 डिक्रीज होगा, सेकेंड होगा PO2 जो होगा वो इंक्रीज होगा, वहाँ पे H प्लस जो है वो डिक्रीज होगा, देन वी कैन से दैट जो वहाँ पे pH होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। नाउ वहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी के थे और इसको तुमने अच्छे से समझ लिया। और ये जब सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे होंगे तो हम कह रहे होंगे कि जो हमारा सिग्मोइड कर्व था वो राइट साइड नहीं आ रहा बट वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड ये जो वैल्यूज थे ये राइट साइड जो हमारे सिग्मोइड कर्व आ रहे थे उसके लिए था, बिकॉज राइट साइड में ऑक्सीजन डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। Now the next sub topic, that is 14.4.2 transport of CO2. Now let's read this. CO2 is carried by hemoglobin as देखो हमने ऑक्सीजन में क्या देखा था, ऑक्सीजन को हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे थे, बट सॉरी ऑक्सीजन को हम लोग बोल रहे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, और इसको हम लोग कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लेट मी राइट देयर, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट जब तुम्हारा CO2 प्लस Hb एसोसिएट हो रहा होगा एंड दैट इज कॉल्ड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। नाउ कीप इन माइंड ये कार्बा अमीनो है बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्वेश्चंस पूछते हैं एंड यू माइट गेट कंफ्यूज, वहाँ पे कार्बोक्सी लिख देगा, कार्बोक्सी लिखेगा, ऑक्सी लिखेगा, कार्बा अमीनो लिखेगा, कार्बा अमाइन लिखेगा, बट कीप इन माइंड जो CO2 है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, इसको भूलना नहीं है। और हमने पहले ही देख लिया था जो हमारे आरबीसी से होते हैं, दैट इज 20 to 25% ऑफ CO2 जाते हैं हमारे आरबीसी से। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा रहेगा वहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन का होगा। और ये जो बाइंडिंग होगा ना CO2 और Hp का हीमोग्लोबिन का, वहाँ पे जो प्राइमरी रोल होगा वहाँ पे अगेन वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होगा, बिकॉज जहाँ पे PO2 डिक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल वो टिश्यू में लोअर था तो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन का, ठीक है। मोर बाइंडिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड अकर व्हेन द PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई एज इन द एल्वियोली। तो जहाँ पे PO2 लो रहेगा, सॉरी PO2 हाई रहेगा और PCO2 लो रहेगा, वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ CO2 हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम कार्बामिनो होमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, दैट इज CO2 विच इज बाउंड हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर टू द एल्वियोली। अब देखो इस चीज को हम देखने से पहले हम पहले इस चीज को देखते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम यूज हो रहा है वो है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और हमारा फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है, H2CO3 का। अगेन इसमें हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज करें तो ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है H प्लस एंड HCO3 माइनस में, ओके। तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम एक चीज लिखते हैं, ये जो हमारा H2CO3 है दैट इज carbonic acid and this is the carbonic anhydrase. Now this carbonic anhydrase is present in RBC. RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase, और कुछ मिनट जो होता है ना, मिनट क्वांटिटीज यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, प्लाज्मा में भी। So we can say that this carbonic anhydrase is present in RBC and plasma, and these are acting as enzyme on the carbonic acid, ठीक है। नाउ दिस कार्बोनिक एसिड, अब देखो अब ये तुम्हारा टिश्यू साइड है, ओके, इसको तुम मान लो ये टिश्यू साइड है एंड ये जो तुम्हारा साइड है दैट इज एल्वियोली साइड, ओके। अब तुम देखो अब इसको कैसे इसने लिखा है, एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई
यहाँ पे जो तुम्हारा CO2 है, पार्शियल प्रेशर इसका हाई है, फॉर्म्स द बाइकार्बोनेट आयन एंड H+। तो यहाँ पे कौन सा बना रहा है, वो यहाँ पे बना दे रहा है वो बाइकार्बोनेट आयन एंड द H+ आयन। तो दिस इज हैपनिंग इन द टिश्यू एंड एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो लो है, यहाँ पे है वो कंडीशन, PCO2 जो है वो लोअर है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ठीक है, द रिएक्शन प्रोसेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो यहाँ पे एक चीज तुम मार्क कर लो, ये है तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, बिकॉज कार्बोनिक एसिड से इसने CO2 प्लस H2O फॉर्म करा दिया, और ये टू द डायरेक्शन जा रहा था जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई था एट द टिश्यू लेवल एंड इट वाज फॉर्मिंग द बाइकार्बोनेट आयन एंड द H+ आयन। थस हम कह सकते हैं जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप्ड होता है एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द alveoli is released out as CO2। Every 100 ml of deoxygenated blood deliver the 4 ml of CO2 in the alveoli। तो 100 ml deoxygenated blood ये क्या देता है, 4 ml of CO2। एंड एक और चीज तुम बड़े आराम से बोल सकते हो, जो तुम्हारा टिश्यू होता है वहाँ पे जो तुम्हारा बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है, बिकॉज वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई था, और यही बाइकार्बोनेट आयन एल्वियोली में तुम्हारे जाके CO2 बन के एक्सपायर्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। हमने इस टॉपिक से इस चीज को अच्छे से समझ लिया। Now we are going to see the next topic, that is 14.5 regulation of respiration। तो इस टॉपिक में हमें बस एक चीज देखना है, जो ह्यूमन बीइंग है ना उनके पास एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी है जो उससे वो मेंटेन कर पाते हैं एक मॉडरेट कंडीशन को, किसके, रेस्पिरेटरी रिदम के एक मॉडरेट कंडीशन को मेंटेन कर पाते हैं, जो उनके बॉडी डिमांड को सूट करता है, ठीक है, उनके बॉडी टिश्यू को वो सूट करता है, सूट्स द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। और ये चीज़ को करने के लिए वो किस चीज़ की हेल्प लेते हैं, यहाँ पे वो हेल्प लेते हैं न्यूरल टिश्यूज़ की। तो अब हमें देखना है कि वो न्यूरल टिश्यूज़ के कौन से पार्ट होते हैं, कौन से स्पेशलाइज सेंटर्स हैं जो एक्चुअली हेल्प आउट कर रहे हैं। तो लेट्स रीड दैट, a specialized center present in the medulla oblongata, sorry, medulla region of the brain called the respiratory rhythm center is primarily responsible for the regulation। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट सेंटर के बारे में देखा, जो हमारा फर्स्ट सेंटर है वो हमारा कौन है, वो है मेड्यूला, एंड दिस मेड्यूला इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब हम सेकेंड रीजन के बारे में देखेंगे, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन। तो हमारा अनदर सेंटर है वो पॉन्स रीजन में है। लेट मी हाईलाइट, पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड नीमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, अब तुम इसको याद कैसे करोगे, पी से पॉन्स एंड पी से नीमोटैक्सिक सेंटर, और ये जो नीमोटैक्सिक सेंटर है दे कैन रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उसके बाद हम अगला देखते हैं, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट्स। ओके, ये कौन कर रहा था, ये हमारा न्यूरल सिग्नल कर रहा है, हमारे सांस अंदर लेने के टाइमिंग को रिड्यूस कर दे रहा है और हमारे रेस्पिरेटरी रेट को वो अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे फिर इसकी वजह से, बिकॉज वी हैव टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, ओके, जो हमारा बॉडी टिश्यू का डिमांड होता है उसको। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट line, that is chemosensitive area situated adjacent, बगल में है किसके, रिदम सेंटर के, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, which is highly sensitive। और ये हाईली सेंसिटिव किसके होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 के एंड हाइड्रोजन के। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कोई खासा रोल नहीं निभा रहा, ठीक है। नाउ लेट्स रीड दिस, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट द सेंटर, किस सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, ये कीमोसेंसिटिव एरिया वाले जो सेंसर हैं उसको एक्टिवेट कर देगा, विच कैन टर्न सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। रिसेप्टर्स, अब यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं,
receptors associated with aortic arc and carotid artery also recognize the changes in CO2 and H plus concentration and send the necessary signal to the rhythm center. क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वही तो मेन सेंटर था, तो सब उसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं. तो रिमेडियल एक्शन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. तो तुम कह सकते हो जो तुम्हारा रोल है किसका, ऑक्सीजन का, O2 का, वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है. किस चीज के लिए, रेस्पिरेटरी रिदम के लिए. ओके, तो हमने यहाँ पे किन किन चीजों को देखा. हमने पहले देखा मेड्यूला को जो था हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. सेकेंड में हमने देखा पोन्स को जो था हमारा निमोटॉक्सिक सेंटर. फिर हमने देखा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को जिसको हम कीमो सेंसिटिव एरिया भी बोल रहे थे, कीमो सेंसिटिव एरिया, जो इसके सेंसिटिविटी को वो नोट डाउन कर ले रहा था CO2 के एंड H प्लस के. उसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बिकॉज वो सेंस नहीं कर पाता एंड दस द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट इन द रेस्पिरेटरी रिदम. और जो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड थे इसके चलते, इस कीमो सेंसिटिव के चलते जो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड थे वो कौन से थे, वो थे aortic arc एंड द कैरोटिड आर्टरी. ये रिकॉग्नाइज कर ले रहे थे चेंजेस के, किसके चेंजेस को, CO2 एंड H प्लस के चेंजेस को. और ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया था वो सिचुएटेड कहाँ था, दिस एरिया वाज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर. ओके, तो हमने ओवरऑल देख लिया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को. जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगे साइड में लिख लो जिससे तुम्हें भूलने में थोड़ी मेहनत लग जाए. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 14.6 डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. द फर्स्ट डिसऑर्डर इज द अस्थमा जिसको हम कॉमन डेली लाइफ में देख सकते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट. देखो अब अस्थमा है क्या, अस्थमा ये है एक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कॉज करता है विजिंग ड्यू टू, अब ये किसके चलते होता है, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल. ठीक है, इसकी वजह से ये चीज अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ BV, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल. नाउ द सेकेंड इज द एम्फेसीमा. ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, नोट डाउन कर लो. एम्फेसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर in which the alveolar walls are damaged, alveolar walls are damaged due to the which respiratory surface is decreased. And you know what is the meaning of chronic disorder, यहाँ पे जो टर्म यूज हो रहा है chronic disorder बस एक डोनेट करने के लिए है. ये वो कंडीशंस होते हैं जो 3 मंथ या ईयर तक रह सकते हैं और वो टाइम के साथ वो वर्स्ट होते जाते हैं. और ठीक है, और इसका जो मेजर जो एग्जांपल दे रखा है इस बुक में दैट इज द सिगरेट स्मोकिंग. This is a type of a chronic disorder. Emphysema is the chronic disorder and this is caused by the cigarette smoking and this is one of the major causes. Now the last is the occupational respiratory disorder. अब देखते हैं इसके बारे में. In certain industry, especially those involving handling or to breaking, too much is produced and that the defense mechanism होता है हमारे बॉडी का वो फुली कोप अप नहीं कर पाता. ठीक है, कैन नॉट फुली कोप अप विद द सिचुएशन, जो डस्ट आ रहे हैं अंदर. तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द, अगर इस चीज को ज्यादा समय तक शरीर झेलेगा तो उसको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा लीडिंग टू द फाइब्रोसिस. अब ये फाइब्रोसिस किसे कहते हैं, नाउ सी दिस. फाइब्रोसिस इज द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज एंड दस कॉजिंग अ सीरियस लंग डैमेज. ठीक है, एंड वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वेयर द प्रोटेक्टिव मास्क. बट इन द डेवलपिंग कंट्रीज सच एस इंडिया ये चीज इतनी फॉलो नहीं हो पाती, लोग करते भी नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द समरी. Cells utilize oxygen for metabolism to produce energy along with the substance like CO2 which is harmful. Animals have evolved different mechanism for the transport of oxygen to the cells for the removal of CO2 from there. We have well-developed respiratory system comprising of 2 lungs and associated air passage to perform these functions. इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में. तो the first step in the respiration, first step respiration में कौन सा, breathing, by which the atmospheric air is taken in, inspire करते हैं हम, and the alveolar air is released out, that is the expiration. Now let's see the next line. Exchange of oxygen and CO2 between the deoxygenated blood and alveoli, transporting these gases throughout the body by the blood, because blood was the medium of transportation of the gases.
exchange of oxygen and CO2 between the oxygenated blood and the tissue and utilization of oxygen by the cells, that is the cellular respiration जो टिश्यू के अंदर हो रहा होता है, are the other steps involved. ये सब हम ब्रीदिंग में देखते हैं और जो लेटर ऑन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. तो इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन हो आर कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कि हमने टेक्स्ट में देखा था. ओके, between the atmosphere and the alveoli with the help of a specialized muscle, intercostals and the diaphragm. तो इस चीज को तुम हाईलाइट कर लो. इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन हो, कैरिड आउट होते हैं वो बाई क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट between the atmosphere and the alveoli with the help of a specialized muscle. That muscle are intercostal and diaphragm. ये वो specialized muscles के नाम है. Now let's move to the next statement. The volume of air involved in this activity can be estimated with the help of a spirometer जो हमने टेक्स्ट में देखा था and are of clinical significance. So exchange of O2 हो या CO2 हो at the alveoli and the tissue occurs by diffusion, जिसको हम लोग प्यार से simple diffusion भी बोल देते हैं. So the rate of diffusion, अब ये जो रेट है इसका डिफ्यूजन का रेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता. लेट मी हाईलाइट. वो डिपेंडेंट होते हैं on the partial pressure of gradient of oxygen and CO2 and their solubility as well, because अब suppose करो CO2 is highly soluble as compared to the oxygen. फिर वो डिपेंड करता है thickness of the diffusion surface क्या है. These factors in our body facilitate the diffusion of oxygen from alveoli to the deoxygenated blood as well as the oxygenated blood टू द टिश्यू, एटमोस्फेयर से टिश्यू की तरफ. तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारा एटमोस्फेरिक एयर या एल्वियोली से वो टिश्यू तक चला जाता है और जो हमारा CO2 है वो टिश्यू से एल्वियोली तक चलाता है एंड फाइनली एक्सपायर्ड आउट हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमने टेक्स्ट में अच्छे से देख लिया. इन द एल्वियोली वेयर द PO2 इज हायर, oxygen gets bound to the hemoglobin, ठीक है, which is easily dissociated at the tissue, जहाँ पे partial pressure of oxygen low था as compared to the PCO2 और वहाँ पे H plus concentration also high हो जाते हैं. कहाँ पे? At the tissue level. ये सब हमने देख लिया है उस ग्राफ से जो कि sigmoid curve वाला था. Nearly 70% of the CO2 is transported as bicarbonates HCO3 minus with the help of enzyme. वो एंजाइम कौन सा था? वो एंजाइम था कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि मिलता था आरबीसी में और उसका मिनट क्वांटिटी कहाँ पे प्रेजेंट था? प्लाज्मा में. सो 20 to 25% of CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin in the tissue where partial pressure of CO2 is high. It get bound to the blood where the alveoli where partial pressure of CO2 is low and PO2 is high. It get removed from the blood. तो ये वही कंडीशंस दिखा रहे हैं जिस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करा और हमने टेक्स्ट में इन चीजों को काफी डिटेल में भी देख लिया. नाउ द लास्ट इज द रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि होता है कहाँ पे? मेड्यूला में. और मेड्यूला कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वी ऑल नो ये ब्रेन में हमारा प्रेजेंट होता है. नीमोटॉक्सिक सेंटर कौन था हमारा? पॉन्स था, इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड द कीमोसेंसिटिव एरिया जो था हमारा इन द मेड्यूला. ये हमारा एडजेसेंट किसके था? ये था हमारा एडजेसेंट था रिदम सेंटर के. और तुम कह सकते हो कि इनके जो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड थे उन रिसेप्टर्स के बारे में भी हमने अच्छे से देखा. वो रिसेप्टर थे कौन से? ऑर्टिक आर्क एंड द कैराटिड आर्टरी. ये दो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड थे जो कि CO2 एंड H+ के लिए सेंसिटिव थे और वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी इनसिग्निफिकेंट हो रहा था. ठीक है, इन द रेस्पिरेटरी रिदम. तो हमने ये चीज़ देख लिया एंड दिस कैन अल्टर द रेस्पिरेटरी रिदम. ओके, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर कर सकते हैं कौन कौन से? हमारी ये मेड्यूला वाले हैं वो कर सकते हैं, हमारी नीमोटॉक्सिक हैं ये कर सकते हैं, कीमोसेंसिटिव हैं ये भी कर सकते हैं. So finally we can say that our chapter is completed. This was the first chapter of human physiology. Okay. So thanks for watching. Do like, comment and subscribe. Thanks for watching. Bye.